Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to plan and prepare for CLAT if you are a dropper. From today on, I'm not going to call you a dropper. I'm going to call you guys a warrior. You are my warriors because taking CLAT is equal to being a warrior. So you are a warrior, no more a dropper. And if you're still deciding that should you take a drop or should you not take a drop, then I've done a video already on that. Please watch that video, hear that video, and decide that should you take a drop or should you not take a drop. Right, in today's video we're going to discuss how to plan and how to prepare for CLAT if you are a dropper. So let's get into the video. Advantage of taking a drop. सबसे बड़ा advantage of taking a drop is that you've appeared and prepared for this exam before. This is the biggest advantage that you have, right? And now you know what are the mistakes that you have committed. प्रॉब्लम एरियाज कौन से थे ये कैसे पता चलेगा जब एनालाइज करोगे. हाउ विल यू गेट टू नो व्हेन यू एनालाइज द पेपर, राइट? एंड व्हेन यू डू सो यू हैव व्हाट यू हैव टू डू दिस ईयर. व्हेन यू टेक अ ड्रॉप ईयर में क्या करना होता है? यू हैव टू इम्प्रूव एंड यू हैव टू वर्क ऑन प्रॉब्लम एरियाज. वो कुछ भी हो सकते हैं. तो ये आपने एक एडवांटेज है. इस एडवांटेज का बेनिफिट कैसे लोगे? इस एडवांटेज का अगर आप एनालाइज करोगे. अगर आप पेपर को एनालाइज ही नहीं करोगे जो आपने पहले दिया था, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं करोगे और आप ये कहोगे कि ओके मैं उठा के सारा सिलेबस दोबारा कर देती हूँ, कोई फायदा नहीं होगा. बेनिफिट तब क्या होगा जब आप अपने प्रॉब्लम एरियाज ढूंढ लोगे. नो डाउट सारा सिलेबस आप कवर करोगे दोबारा से, बट आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज पता होने चाहिए और उनके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ करना चाहिए. स्पेसिफिकली या आप प्रैक्टिस करो, उनको ठीक करो, कुछ पढ़ो, कुछ भी करो, बट आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज क्लियर होने चाहिए. एंड वो एनालाइज. हाउ विल यू एनालाइज? टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द पेपर and the answer key. The paper and answer key are very much available on the website of CLAT. You can find a link down below also in the description box. You need to take out a printout and then see what went wrong. We need to know what went wrong, then only we'll be able to improve, right? What went wrong? Speed. You were not having the speed to complete the exam or to attempt maximum questions you could. You were not even able to attempt 60 to 70 questions. Were you that slow? Speed was a problem. There was this particular subject which was a problem. Under preparation, wrong study material, wrong topics, no practice, time management. What went wrong? You should know. These are the options that I'm giving you. अगर इसमें से कुछ है तो अच्छी बात है, नहीं तो if there is anything else you should know. And one more thing that I want to tell, please note it in your notebook. You need to have a notebook wherein you write down all of these things. This is very important. Okay, next is answer these questions. Which are those questions? What is your score now and what is your aim? Check out the merit list, check out the cutoff, right? You need to know what score, कितना score चाहिए to get into the college, to get into the university that you want to get into. You need to be clear because this is what is going to motivate you. This is what is going to motivate you on the day you don't feel like studying. You'll see, okay, if I scored this much, then only I get my choice college or university, otherwise I won't. और यही आपको मोटिवेट करेगा. Which are the subjects that are weak or strong? Sections कौन से weak हैं, कौन से strong हैं? You should know. Not only sections के बाद आपने topics में भी देखना है. This is the topic that this topic is very strong. I can just do it once and put a tick mark on it. But on this particular topic, this is very weak. I need to work on it. You should know. अगर ये analysis नहीं करोगे, drop लेने का कोई फायदा नहीं है. ड्रॉप लेने का अगर एनालाइसिस नहीं करोगे. आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपने पहले क्लैट दिया है और उसका बेनिफिट आप कैसे लोगे? अगर आप एनालाइज करोगे कि वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ एंड व्हाट इज योर एम, वेयर यू वांट टू रीच, कहाँ पे पहुंचना है. उसके लिए बहुत ज़रूरी है. स्किल्स दैट यू नीड टू एक्वायर विद प्रैक्टिस एंड टाइम. रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी है, ये एक स्किल है जो रिक्वायर्ड है क्लैट के लिए, ठीक है.
पढ़ते पढ़ते थकना नहीं है, इतना पढ़ना है बट वी वोंट गेट बोर ऑफ रीडिंग। ये एक स्किल है जो एक्वायर करना है। स्पीड चाहिए, ये एक स्किल है जो एक्वायर करना है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लैट इज नो मोर कि ये बुक ए है, ये बी है और ये सी है, ये पढ़ लो तुम्हारा क्लैट क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट मैनी स्किल्स, टॉपिक्स एंड व्हाट नॉट, and you should know that. If you know that and if you try one by one to acquire everything, to cover everything, ho jayega clear. Step 2, collect your study material. Now obviously since you were preparing for say a year or two and now you are taking a drop, you have a lot of स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, आपके पास स्टडी मटेरियल है, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, कुछ भी है, ठीक है। कलेक्ट all of it at one place and make a list from which book, which topic or subject needs to be covered, ठीक है ना। For once and all decide. This decision is very important. Now if you say that okay fine, today I'm going to sit down and cover the topic of assumptions from critical reasoning, but you don't know from where you have to cover this topic, then you will be confused again. आपका दिन तो खराब हो गया ना। That today for 2 hours you had to study critical reasoning and you had to cover the topic of assumptions, but you did not decide कि कौन सी बुक या कौन सी स्टडी मटेरियल में से आपको कवर करना है। तो क्या हुआ, तो वो जो 2 घंटे का टाइम था वो इसी डिसाइड करने में रहेगा कि इधर से करूँ या उधर से करूँ। तो क्या कैसे डिसाइड करोगे? बुक खोलो, देखो कौन सा सही लग रहा है, इसमें से टॉपिक कवर करना चाहिए, और पहले भी कवर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा कि इस बुक में से कवर करना है, राइट। सो डिसाइड दिस ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड राइट इट डाउन। यू नीड टू हैव योर प्लान। डायरी या नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप प्लान क्लैट लिख लो। प्लान उसको क्या नाम दे रहे हैं हम? प्लान क्लैट, ठीक है। नेक्स्ट इज नेवर कवर वन टॉपिक फ्रॉम 4 बुक्स अनलेस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और यू आर रिवाइजिंग एंड यू नीड टू प्रैक्टिस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, राइट। नाउ व्हाट मिस्टेक नॉर्मली यू गाइस मेक इज कि मान लीजिए आप इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट करनी है और आप पर्टिकुलर टॉपिक जो कवर कर रहे हो वो आप कर रहे हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आपने टॉपिक करना है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने एक बुक उठाई, कोई भी आपकी ए बुक है ये उठाई, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि अगर मैं ए बुक में से पढ़ रही हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से, अब टाइम है कि आप प्रैक्टिस कर लो। बट प्रैक्टिस ना करके आपने क्या किया, बुक बी सी डी सब में से उठाकर करना स्टार्ट कर दिया, प्रैक्टिस नहीं, थ्योरी पार्ट। क्या फायदा? इंस्टेड अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस। कब आप दूसरी बुक में मूव करोगे? एक बुक उठाया, उसमें से समझने की कोशिश करी बट मुझे समझ नहीं आई। एक बुक मैंने उठाई, उसमें से मैंने समझने की कोशिश करी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको क्लैट क्लियर करना है तो क्लैट इज नॉट जस्ट स्टडिंग दिस बुक and some study material and you're done. No, it is a mixture of a lot many things. What? It is a mixture of a lot many things. What are those things? You need to gain knowledge, you need to attain knowledge. आपके पास knowledge होनी चाहिए, कुछ skills होने चाहिए, प्लस डाल दूँ मैं यहाँ पे knowledge प्लस skills प्लस प्रैक्टिस। अगर आप नॉलेज गेन करके बैठ गए हो बट उसको अप्लाई करना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। नॉलेज गेन कर ली, प्रैक्टिस गेन कर ली बट स्किल नहीं आता, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको सब चीज़ें करना है, ये नोट कर लो, नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू क्लैट। नॉलेज कहाँ से गेन करोगे आप? नॉलेज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा मैगजीन्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, स्टडी मटेरियल पढ़ोगे, जिसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देख लेना, उसके अंदर आई ट्राई टू डिफाइन द सिलेबस ऑफ क्लैट, राइट। देयर आई हैव टोल्ड यू कि आपको कुछ बुक्स, कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में बात करी हुई है। ये रिसोर्सेज से क्या होगा? नॉलेज आएगी। स्किल्स, रीडिंग स्पीड चाहिए, कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर वर्ड्स, वोकैबुलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है वोकैबुलरी बिल्ड करना। बिल्डिंग ओपिनियन एंड इंट्यूशन, यहाँ पे अब नॉलेज के अंदर क्या क्या, ग्रामर की स्किल्स भी चाहिए, रीडिंग स्किल्स भी चाहिए, ये सब चाहिए आपको, चाहिए, हाँ जी।
ठीक है। अब प्रैक्टिस में आप मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, बट आपने अपनी रीडिंग स्पीड नहीं बनाई। आप मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर बड़े अच्छे से पढ़ा, न्यूज़ बड़े अच्छे से कवर करी, आपकी लीगल एप्टीट्यूड का और जीके का, करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया, बट आपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे। लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को बोले थे वो नहीं करे, फिर अप्लाई करना नहीं आएगा। वो नॉलेज अप्लाई करनी भी आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस। नॉट ओनली इन लीगल रीजनिंग का सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमें प्रैक्टिस चाहिए। वो कौन कौन से? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस चाहिए हमें, ठीक है, हमें क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स, लीगल रीजनिंग, ये सब की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये हमें याद रखना है कि क्लैट इज मिक्सचर ऑफ अ लॉट मेनी थिंग्स। ओके, यू आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? यू आर गेटिंग इट? कि पिछली स्लाइड में हमने बात करी दैट देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट यू नीड टू एक्वायर, a particular kind of knowledge you need to gain, and then you need to practice also to clear CLAT, right? Now you need to divide all these things. ये सब एक बारी में नहीं हो जाएगा, that you have to divide your plan in such a way that you are able to do all these things. That is to acquire the right kind of skills, to gain the right knowledge, and to practice also, right? I'm giving you an example that how you should divide your plan, your studying plan, into various stages, right? So let's see. Number one is foundation stage. That is, let's call this a foundation stage, wherein you lay down the foundation of your preparation. What you do? You lay down the foundation of your preparation, wherein, for example, I take this topic. This is topic A. This is topic A and my resource is anything that I have decided previously कि ये मेरा resource होगा. तो इस resource में क्या होगा? That number one, what I'll be doing? कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मुझे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मुझे उस टॉपिक की। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस टॉपिक की मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? एक चीज। दूसरा, आई विल प्रैक्टिस ऑल्सो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये क्या करते हैं कि हमने समझ लिया, मुझे पता है ये क्या है, बट प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है। देयर इज गोइंग टू बी नो बेनिफिट। तो ये फाउंडेशन स्टेज में आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रैक्टिस, ये हम यहाँ पे कर लेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब कहीं ना कहीं हम स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हैं ये फाउंडेशन स्टेज में, क्योंकि जब हम नॉलेज गेन कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम अपनी रीडिंग स्पीड पे वर्क करेंगे। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम अपनी वोकैब पे भी वर्क करेंगे, जो एक स्किल एक्वायर कर रहे हैं हम, ठीक है ना? तो इस स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं हम स्किल भी एक्वायर करेंगे, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, और इस ऐसे ही हम अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। और फाउंडेशन स्टेज के अंदर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम नोट्स भी बनाएंगे। जो ड्रॉपर हैं वो तो जीके के नोट्स बनाएंगे, करंट अफेयर्स के हमारे नोट्स होने चाहिए। 101% वी आर मेकिंग नोट्स, नो ऑप्शन की वी आर नॉट मेकिंग नोट्स, ठीक है? स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होगा? जब हम एनालाइज करेंगे, जब मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे, हमें पता चलेगा कि व्हाट इज रॉन्ग। अगेन हमें पता चलेगा व्हाट इज रॉन्ग। अगर हमें रॉन्ग पता चल गया तो ऑब्वियसली वी कैन इम्प्रूव इट एंड वी कैन मेक इट राइट फॉर अस, ठीक है ना? तो ये हम इस स्टेज के अंदर, स्टेप 2 के अंदर, यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो अब हम और प्रैक्टिस और रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? रिवाइज करेंगे और रिवाइज के अंदर यहाँ पे हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो रिविजन में ये नोट्स भी हमारे यहाँ पे हेल्प करेंगे। ओके, तो जो आपके पास जितने भी मंथ्स हैं आपके पास, वो आपने ऐसे डिवाइड करने हैं स्टेज 1, 2, 3 के अंदर। स्टेज 3 के अंदर क्या करोगे? टाइम मैनेजमेंट, स्पीड पे काम। वीक टॉपिक्स और सेक्शंस जो हैं, सेक्शन तो वीक होना ही नहीं चाहिए इस टाइम तक, वीक टॉपिक हो सकता है वो भी थोड़े बहुत, राइट?
तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड पे काम करोगे। अल्टीमेटली जब आपने बहुत बहुत हो जाएगा तो टाइम मैनेजमेंट एंड स्पीड, ये कहीं ना कहीं, ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्टेज 1 में और स्टेज 2 में इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे, आप धीरे धीरे काम करोगे, बट यहाँ पे तो स्पेसिफिक हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट देखोगे, स्पीड देखोगे, राइट। और आप डिसाइड भी करोगे कितनी बार आपके रिविजन्स हो जाने चाहिए, स्पेशली करंट अफेयर्स के जो आपने नोट्स बनाए हैं वो कितनी बार आप रिवाइज करोगे अपने करंट अफेयर्स के नोट्स, ठीक है ना। जो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स का जो टॉपिक है वो कितनी बार आप कौन से टॉपिक्स रिवाइज कर दोगे अपने, कितनी बार आपको वो प्रैक्टिस करना है, ये सब आपका डिसाइड होना चाहिए, राइट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने एक अपडेटेड सिलेबस का वीडियो किया है, अपडेटेड सिलेबस का वीडियो प्लीज़ वो चेक करना। उसके अंदर मैंने आपको यही बताया है कि कैसे, तो यहाँ पे जैसे हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना स्टेज 1 पे, तो वो बेसिक्स कौन से सब्जेक्ट के क्या क्या बेसिक्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे और वैसे यू कैन वर्क इट आउट, राइट। आई होप आपको फील मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि किस किस चीज़ पे काम करना है, और सब चीज़ों पे आप एक साथ तो काम कर नहीं सकते, तो उसको डिवाइड कर लो जरूर। स्टेप 3, प्लानिंग एंड सेटिंग अप अ रूटीन। अब क्योंकि आप ड्रॉप ले रहे हो और आप अपना पूरा का पूरा टाइम क्लैट को दे रहे हो, तो आपने अपना एक रूटीन सेटअप करना है। अगर आप अपना एक रूटीन सेटअप नहीं करोगे, यू वोंट सेटअप अ रूटीन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम से हमने दूर रहना है। आपका टाइम ना, जब आप प्लान करोगे तो आप सिर्फ अपना ये नहीं प्लान करोगे कि इस दिन मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है या इस मंथ के अंदर मेरा ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला सेक्शन ख़त्म होना चाहिए। आप ये भी प्लान करोगे कि आपके टाइम ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो करी हुई है, वॉच द वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीट फॉलो करो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया कि आप अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हो। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्सरसाइज रूटीन, अब हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लाइट एक्सरसाइज करिए। मे बी यू कैन गो फॉर अ वॉक, मे बी एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जिसमें यू डोंट गेट मच टायर्ड, इतना भी टायर्ड नहीं होना कि पढ़ ना पाओ। मेन एम क्या है हमारा? पर्पस ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप इज एक्सरसाइजिंग? नो, द पर्पस ऑफ टेकिंग द ड्रॉप इज वी हैव टू क्लियर क्लैट नेक्स्ट ईयर। अभी हमें एक्सरसाइज क्यों करना है? क्योंकि हमें फ्रेश रहना है, हमें बोर नहीं होना, ठीक है ना। हमें फ्रेश रहने के लिए बाहर निकलना है। इट कुड बी एज इजी एज going for a walk. Having a studying space, it is very important to have a studying space. Now studying space से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़ा सारा रूम लो और उसको डेकोरेट करो। No, you need to have a table, you need to have a chair. I don't know how to make a chair, I hope you get it. बहुत ही बेकार chair बनाई है मैंने। You need to have a study lamp and stuff like that, so that you know that when you sit here you have to focus. Specific time blocks when you study. Now you need to have time blocks. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं we are not able to focus. हम focus कैसे करें? देखो, if you are not able to focus, starting में थोड़ा कम time span के लिए focus कर पाओगे, but अगर जब भी कहीं और ध्यान जाता है, whenever you are not able to pay attention, bring your mind back. Tell yourself that नहीं, I have to study, right? That is how you learn to focus. And if you have specific time blocks to study, then it would be better. Step 4, never look back, stick to the plan. Now, since you've done a lot of planning, after watching this video, I hope you do your planning right, wherein you have your yearly goals set up, then you have your monthly plan, then you have your daily plan. All of these plans are there, and then you have a daily schedule which you follow, wherein you exercise also, wherein you stay fresh also, but you never look back. Now, what I mean by not looking back on what? On your decision of taking a drop. डिसीजन ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप, कभी भी ये मत सोचना ये मैंने क्या किया। नो, ऑलवेज ओपन अप योर नोटबुक, वेयर इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट राइट योर वाई, राइट डाउन योर वाई। अभी भी अगर नहीं लिखा है, राइट इट डाउन। वाई आर यू टेकिंग अ ड्रॉप? यू वॉन्ट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी, वाई? पूरा एक पैराग्राफ लिखो, एक लाइन, नॉट वन लाइनर। Write down your feelings, because this what you have written down is going to motivate you. तो पीछे नहीं देखना है मुड़कर। अगर आपका कोई फ्रेंड आता है जिसकी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गई है, उसको देखकर ये नहीं करना कि मैंने क्यों ड्रॉप लिया, मेरे से पहली बार में क्यों क्लियर हुआ। नो आस्किंग क्वेश्चंस, जस्ट वर्किंग द स्मार्ट वे, working hard, and that is it. No looking back. If you look back and keep on एक regret नहीं पालना कि यार मैंने क्यों ड्रॉप लिया, ले लिया, अब ले लिया तो अच्छे से पढ़ो, so that वो regret ना रहे कि यार ड्रॉप भी लिया और पढ़ाई भी नहीं करी।
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLoggery के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।